Hi, good afternoon, everyone. So, welcome to this session where we are going to talk about careers in management. So, yes, if you are a graduate or if you are someone who is pursuing graduation and thinking about pursuing MBA, I'm sure you will have many queries in your mind. So, let me tell you, all your queries will be addressed during this session. So, quickly show me a thumbs up if the audio and video is fine, guys. Are you all able to hear me? Yes, great, great. So good to see all of you guys. I think few more students are joining. So please quickly inform your other classmates and all. Yeah, so that we will start with the session. Yeah, hi guys. So I think the other students are still joining. So let me, in the meantime, let me just post it on the group so that students are well aware about this. Let me remind them once again. Yes, sure. So guys, can you quickly tell me what are you doing currently? From which place are you? Everyone, type it in the chat box. आप क्या करते हो? Just briefly. For example, I'm from Pune. I'm doing my BE from say PICT college or whatever it is. So please type it in the chat box. Yes. Hi guys. हाँ हाँ ठीक है. It's okay अंशुमन. मैं समझ गया तुम कैसे लोगों से घेरे हुए हो. हाँ हाँ. Right. Samir, you are doing computer engineering. Okay. Hi. Okay. Come on, everyone, please tell me something about yourself also. Prerna, you are from West Bengal. Okay. You are from Mumbai and working at Nielsen. Okay, Mehak. I'm a psychology student from SP. Jian. Okay. Uh-huh. Come on, guys. Since the other students are joining, so let me just understand, your background. Right. Okay. Hmm. Fine, guys. So let me share PPT with you in the meantime. Just a second, huh? I'm just sharing the PDF, guys. PPT. Okay, Prerna is doing BA. Mm-hmm. Fine. Hi, everyone. So welcome to the session.
Yeah, so this is more of a career guidance session. So definitely you can ask any question that you have, and in my capacity, I'll try to answer that. Okay. Yeah, fine. Hi, good evening, Sonam, not the Sanam. Hi, Anchita, user. Great. So, guys, in the meantime, let me quickly tell you something about myself. So, once again, my name is Ronak Shah, and this is a bit about myself. So, I have been training students for CAT, aptitude, placements, group discussion, personal interview, and all for last many years, along with, of course, IPMAT and all. And yeah, so I am an educator leader at Unacademy. So, this is my Telegram group. If you want to stay connected with me, you can quickly search this group on Telegram. It's Unacademy_Ronak Shah. In fact, let me also share the Telegram group. This is kind of Telegram channel. तो उस पे मैं काफी सारे अपडेट्स डालता रहता हूँ. यस, मैंने पिन किया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, तो उसको पहले ज्वाइन कर लो. फिर जब आप उसको ज्वाइन करोगे तो उसमें अपडेट्स आते हैं. देयर इज अ सेपरेट ग्रुप वेयर द स्टूडेंट शेयर देयर डाउट्स एंड ऑल. सर, मेरी स्टोरी का वीडियो, आपकी स्टोरी का वीडियो कब आएगा? आएगा. या हाय अंशिता, राइट अंशुमन. सो आएगा जल्दी. मैं एक मूवी बना देता हूँ, एक काम करता हूँ, ठीक है. सो मेरी लाइफ के ऊपर एक मूवी बना देते हैं, फिर रिलीज कर देते हैं. एटलीस्ट आप लोग देख लेना, राइट. Okay, so guys, you can also attend my free sessions on Unacademy CAT channel, ठीक है, on YouTube. तो आपको काफी सारे मेरे सेशंस उधर दिखेंगे. And yeah, so I am going to conduct few sessions on YouTube, and this basics of maths I'm doing every day at 4 PM. जैसे आज शाम को 4 बजे है, उसमें हम बेसिक करते हैं. बेसिकली इट्स फॉर दोज हु आर वीक एट मैथ्स, तो उनके लिए सेशंस है. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन ऑल्सो अटेंड माई प्लस बैचेस. चलो दोस्तों, तो शुरू करते हैं डिस्कशन. सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि व्हाई डू यू वांट टू परस्यू एमबीए, राइट? तो डेफिनेटली देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस दैट यू डिराइव बाय डूइंग एमबीए. फॉर एग्जांपल, यू गेन नॉलेज ऑफ वेरियस बिजनेस फंक्शन. तो अगर सपोज आप एक इंजीनियर हो, तो आपने टेक्निकल स्किल गेन करी. सपोज यू आर कैपेबल ऑफ मेकिंग सम प्रोडक्ट, बट वो प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक कैसे पहुंचाए, especially in the fierce competitive world. So that is where the management education comes in the picture. And how can you make your business more profitable? तो वहां पे आपको मैनेजमेंट एजुकेशन लगता है. So you gain knowledge of various business function. Then of course better career opportunities. Guys, tell me one thing. What is the average salary that you get right now, or maybe after your graduation? क्या आप प्लीज चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हो? What is the average salary that your seniors have got? Just type a figure in the chat box. Come on. So Mehak is saying 3 lakh per annum. 3 lakh per annum. Ajay is saying 6 lakhs per annum. Okay. These are per annum salaries that you are typing in the chat box. हाँ. Come on guys, please post it. जो भी आपको लगता है कि आपको इतनी सैलरी मिल सकती है, आपके सीनियर्स को इतनी मिलती आ रही है. Come on. What is the average salary that you get, after your graduation in the current scenario? So I'm sure all of you would agree it will be close to 3 to 6 lakhs per annum. अरे अंशिता, ये इतनी खराब हालत कहाँ पे है कि 2 लाख मिल रहा है? हाँ. या क्योंकि एक 20-25,000 तो आजकल नॉर्मली ग्रेजुएट्स को, चलो मैं मान लेता हूँ, मिल जाते हैं. ठीक है, रियलिस्टिकली यस, कुछ कॉलेज में तो 10 to 15,000 भी मिलता है. ठीक है, बट मैं वो सिनारियो साइड में रख देता हूँ. एटलीस्ट ये सिनारियो कंसीडर करते हैं. ठीक है guys, what is the average salary that you get when you complete your MBA from any of the top B school, top 20 B school? ठीक है, right? The average salary that you get after doing your MBA from top 20 B school will be in the range of 15 to 20 lakhs per annum. Just look at the jump. कि अगर सपोज आप अपना जो भी ग्रेजुएशन है वो करने के बाद अगर आप सपोज 6 lakhs की जॉब भी करने लगते, तो 2 साल में हर साल आपका इंक्रीज कितना होता है? तो गाइस, जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है उससे थोड़ा ज्यादा आपको सैलरी में हाइक मिलता है. ठीक है ना. हर साल आपकी सैलरी क्यों बढ़ाते हैं? क्योंकि अगर आप देखोगे चीजों की प्राइस हर साल बढ़ती जाती है, तो देयर इज समथिंग कॉल्ड इन्फ्लेशन.
सो उससे थोड़ा ज्यादा आपको हाइक मिलता है। इफ यू आर लकी इनफ, आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, तो शायद आपको उससे दुगना मिल जाए, बट उससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हर साल आपका सैलरी डबल हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो अगर मैं एक हेल्दी सपोज इंक्रीमेंट पकड़ लेता हूँ 20% का, तो 6 lakhs को अगर मैं 2 साल, मैं एमबीए नहीं करता हूं, मैं जॉब मैंने ले लिया, मैंने जॉब करना शुरू किया, अगर मैं 2 साल इंक्रीज भी करूंगा, 2 साल तक मेरा सैलरी इंक्रीज भी होता है, तो भी ये टोटल आपका कितना आ जाएगा, राइट? तो 6 लाख का आपका 7,20,000 हो गया। फर्दर उसको इंक्रीज कर लो तो आपका अराउंड 8.6 8.7 के आसपास कुछ सैलरी आ जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आपको एवरीवन? ठीक है ना? करण, वी विल टॉक अबाउट दैट डेफिनेटली। आई एड्रेस एवरीथिंग कि अगर आप मैथ्स में वीक हो, आप अगर इंग्लिश मीडियम से नहीं हो, इंग्लिश में वीक हो, तो आप कैसे इंप्रूव कर सकते हो? सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। सो गाइस, दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन कि अगर आप 2 साल जॉब करते हो, आप यहां तक पहुंच पाओगे और आप एमबीए के बाद में सीधा यहां तक पहुंच सकते हो। बट यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? टॉप 20 बी स्कूल। गाइज यहाँ वहां एरे गहरे नत्थु गहरे कॉलेज से कर लिया तो उससे कोई आपको ज्यादा फायदा नहीं मिलेगा, राइट? सो डेफिनेटली यू गेट बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज, नॉट ओनली बेटर सैलरी बट द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू गेट आर क्वाइट चैलेंजिंग। ओके गाइज, क्या आपको पता है कि ये जो सारे कंपनीज है, जैसे ओयो है या ओला है या उबर ले लो या फिर आप स्नैपडील ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, ठीक है, ये कंपनीज जब शुरू हुए ना, तो इनिशियली दे वर डूइंग बिजनेस विद द इन्वेस्टर्स मनी। क्या आपको ये पता है? इन्वेस्टर्स के पैसों से वो बिजनेस करते थे। दे वर बर्निंग ऑन एन एवरेज 5 रुपीज, ठीक है, दे वर स्पेंडिंग 5 रुपीज, उनका एक्सपेंस 5 रुपए का था और उनकी इनकम 1 रुपए की थी, 1 रुपी इनकम थी। और काफी सारे कंपनीज तो अभी भी वैसे ही है, राइट? फिर भी वो बिजनेस कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? हमने तो बचपन से यही देखा है कि अगर आप 10 रुपए की चीज को 15 रुपए में नहीं बेचोगे तो आप कैसे अपनी शॉप का रेंट भरोगे और अपने एक्सपेंस कैसे निकालोगे, राइट? तो ये इन्वेस्टर मनी क्यों डालते हैं और इसमें इनका क्या फायदा है? क्योंकि प्रॉफिट तो कहीं पे हो ही नहीं रहा है, ठीक है ना? अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, और वो कंपनी के, अगर कंपनी ज्यादा प्रॉफिट अनाउंस करती है तो आपको डिविडेंड मिलता है, या कंपनी वो शेयर के प्राइस बढ़ते हैं, जब कंपनी के रिटर्न्स रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, तो आपके पैसे जो है, आपने जो इन्वेस्ट किए थे, 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए थे, वो आपके 1,200 रुपए हो गए। बट कंपनी अगर घाटा कर रही है तो कंपनी कैसे इनको पैसे देगी? कभी सोचा है ये चीज? यस, एनी आइडिया अबाउट दिस गाइस? इफ यूड लाइक टू शेयर सम थॉट्स, लेट्स मेक इट एन इंटरेक्टिव सेशन गाइस। नहीं तो ऐसे आपको YouTube पे बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, बट मैं नहीं चाहता कि वो हमारा सेशन ऐसा हो, ठीक है? लेट्स अंडरस्टैंड। वैल्यूएशन बढ़ा के, सर बाय इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, करेक्ट। जो आप दोनों ने वैल्यू जो टर्म्स यूज किए हैं, वैल्यूएशन बढ़ा के बाय इंक्रीजिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन, राइट? सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज द वे द बिजनेसेस वर being run earlier and the way they are being run now and the way they'll be conducted in future will be different, right? तो ultimately आपको ये सारी चीजें समझनी पड़ेगी and this is what you learn when you enroll yourself in one of the best B school in the country, one of the top B school in the country, right? So it's not only about learning marketing, finance, HR and all. You go through lot many case studies. The way the education is imparted in a B school is different than the way you learn at your college. Okay, so काफी आपको knowledge gain होता है। तो यही चीज मैंने यहाँ पे बताई है कि ब्रॉडर थिंकिंग, आपको बिजनेस फंक्शन के बारे में तो पता चलता है, बट यू गेट ब्रॉडर आइडिया अबाउट द बिजनेस, ओके? एंड आपको काफी इनोवेटिव आइडियाज मिलते हैं, राइट? पर्सनालिटी डेवलपमेंट, पर्सनालिटी एनहांसमेंट होता है, क्योंकि उनका जो उन्होंने जो करिकुलम बनाया है उसके अंदर सिर्फ वो पढ़ाते नहीं है, वो आपको एक बेटर इंडिविजुअल बनाते हैं इन टर्म्स ऑफ योर स्पीकिंग स्किल, इन टर्म्स ऑफ योर द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ। काफी सारे बी स्कूल में अगर आप देखोगे तो डाइनिंग एटिक्वेट्स के भी क्लासेस होते हैं। मतलब आपको ये भी बताया जाता है कि अगर आप सपोज डिनर टेबल पे बैठे हो क्लाइंट के साथ में, तो आप कैसे फॉर्क एंड नाइफ यूज करते हो, आपका बॉडी कैसा होना चाहिए, सारा आपको बताया जाता है। सो ओवरऑल पर्सनालिटी एनहांसमेंट भी होता है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज नेटवर्किंग गाइस। सो यू गेट कनेक्टेड विद मेनी फ्यूचर मैनेजर्स एंड दैट हेल्प्स यू अ लॉट।
right? So guys, these are some of the reasons why people go for MBA. तो अभी सवाल ये आता है कि सर MBA इंडिया में करें या अब्रॉड से करें? How many of you are thinking of doing MBA abroad, guys, or have some idea of doing MBA from any college abroad? Can you just type it in the chat box? Type me in the chat box if you were thinking or if you are thinking to do your MBA from abroad. महक is saying no, क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़े challenges सीधे लिख दिए हैं. तो काफी लोग ऐसा सोचते हैं कि मोहक, ओहो मोहक, सॉरी मोहक, या देयर इज अनदर स्टूडेंट ऑफ माइंड, ठीक है. और ये ओ और ए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, जैसे सोनम का सनम हो जाता है, राइट. एनीवेज गाइस, तो काफी सारे स्टूडेंट्स जब वो प्रिपरेशन करने आते हैं तो वो क्या सोचते हैं पता है? वो ऐसा सोचते हैं सर कैट तो बहुत टफ है, एक काम करता हूँ मैं जीमैट दे देता हूँ, जीमैट थोड़ा इजी लगता है मुझे, और मैं अब्रॉड चला जाता हूँ. यहाँ पे तो मेरा आईएम में होगा नहीं, मैं अब्रॉड चला जाता, कोई अच्छा कॉलेज मिल जाएगा उधर और एक अच्छा करियर बन जाएगा. तो गाइस यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहता हूँ कि इट इज डिफिकल्ट टू गेट एडमिशन इन टॉप बी स्कूल अब्रॉड, जिसको हम ईवी लीग बी स्कूल्स कहते हैं, देन इन इंडिया, राइट. अगर आप देखोगे आईएम अहमदाबाद या कोई भी आईएम ले लो, उसमें ज्यादातर स्टूडेंट्स इंडियंस होते हैं. लेकिन आप अब्रॉड के कोई भी कॉलेज में जाओगे, यू विल फाइंड स्टूडेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड ओवर देयर. तो उधर कोई ऐसे रिजर्वेशन नहीं है, ठीक है. तो कौन सा डिफिकल्ट होगा, यहाँ पे जहाँ पे इंडियंस के लिए रिजर्वेशन है वहां पे एडमिशन लेना, या जहाँ पे पूरे दुनिया से लोग आते हैं? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो इट्स डेफिनेटली वेरी चैलेंजिंग. जितना स्टूडेंट्स परसीव करते हैं उतना इजी नहीं होता है. यू नीड टू हैव स्ट्रांग प्रोफाइल एंड ऑल. अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑफ कोर्स, जो चीज आपको यहाँ पे आईएम अहमदाबाद 25 लाख में पढ़ाता है, वही चीज के लिए आप हार्वर्ड एंड स्टैनफोर्ड में 1.5 से 2 करोड़ स्पेंड करते हो. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब यहाँ पे आप ये रीजन दे सकते हो कि सर अब्रॉड जाते हैं तो हमें ज्यादा एक्सपोजर मिलता है, क्रॉस कल्चरल लर्निंग होती है, इंडिया में तो सारे इंडियंस ही आएंगे. तो गाइस ऐसा नहीं है. इंडिया में भी जो कॉलेजेस है उसमें आपको स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम करके अपॉर्चुनिटी मिलती है. तो डेफिनेटली यू कैन ऑल्सो spend one semester, trimester in some other college in the different country, and you can get that exposure, that too at a very nominal cost. तो अगर सिर्फ अब्रॉड जाना वो आपके लिए एक फैंसी थिंग है, तो आप एमबीए इंडिया में करो एंड फाइंड सम अदर वेज टू गो अब्रॉड, राइट. ओके, सो हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क गेम है. जैसे अभी पेंडेमिक आ गया था, काफी सारे स्टूडेंट्स को वापस आ जाना पड़ा. दे स्पेंड ह्यूज मनी और अल्टीमेटली उनका एजुकेशन चल रहा था ऑनलाइन, राइट. फीस तो उनको उतने ही पे करने पड़े, और दूसरा उधर कोई कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है. इंडिया में ये कॉन्सेप्ट है कि आप जब फाइनल ईयर में होते हो तो कंपनीज प्लेसमेंट के लिए आती है. दैट इज अ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, जिसका काम है कंपनीज को बुलाना. वो सिर्फ कंपनीज को ही नहीं बुलाती, आपके लिए एप्टीट्यूड ट्रेनिंग और काफी सारी चीजें भी करते हैं, राइट. बट अब्रॉड ऐसा नहीं है. उधर आपको प्लेसमेंट नेटवर्किंग से मिलता है कि यू गेट कनेक्टेड विथ योर अल्यूमनाई एंड देन यू टेल हिम और हर, आप मेल लिखते हो, फिर उसको बताते हो कि यार मुझे इस ऐसे प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, इफ यू हैव एनी ओपनिंग प्लीज लेट मी नो, एंड देन यू गेट अ जॉब, राइट. एंड ऑफ कोर्स चेंजिंग वीजा रूल्स, आपको पता है कि वीजा रूल्स चेंज होते हैं. अभी जॉय बाइडेन आया है, अगर मैं यूएस की बात करूं तो उसकी थिंकिंग थोड़ी अलग है. कोई नया प्रेसिडेंट आएगा तो उधर चेंजेस आ सकते हैं. तो देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स, राइट. सो अच्छा, अब यहाँ पे एक और चीज मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपको ये क्वेरी फिर भी है तो दोस्तों, जो सपोज आप एक इंजीनियर हो, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग किया सपोज, और उसके बाद आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आगे करना है, ऑटोमोबाइल में मास्टर्स करना है, एमएस करना है, ठीक है. तो अभी अगर आप सपोज कोई भी टेक्निकल लाइन लेते हो, उसमें अगर आप मास्टर्स के लिए जाते हो तो यू वुड प्रिफर टू गो टू अ कॉलेज विच हैज गुड लैब्स, ठीक है, गुड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सो एंड सो फोर्थ. इंडिया के अगर आप कॉलेजेस देखोगे तो इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको नहीं मिलेगा जितना आपको जर्मनी, यूएस और वो जगह पे मिल जाएगा. तो आप सोच सकते हो कि यस, लेट मी गो टू जर्मनी इफ आई वांट टू गो फॉर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, राइट. बट अगर आप एमबीए देखोगे, सो एमबीए इज अ कॉन्सेप्ट एजुकेशन, इट्स अ कॉन्सेप्ट बेस्ड एजुकेशन, नॉट द टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है. तो उसमें आप यहाँ पे आईएम अहमदाबाद में बैठोगे तो भी आप वही केस स्टडी पढ़ने वाले हो जो आप हार्वर्ड में जाओगे और आपको पढ़ने को मिलेगा, राइट. सो लर्निंग इंडिया में भी उतनी ही है जितनी आपको हार्वर्ड में मिलती है. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस एंड देन मेक योर डिसीजन.
ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर ड्रिवन बाय परसेप्शन, राइट? सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू सम फूड फॉर थॉट बाय द वे. नाउ कम्स द क्वेश्चन कि सर कौन से एग्जाम्स है जो हमें टारगेट करने चाहिए, कब होते हैं, और उसके थ्रू हम कौन से कॉलेज में जा सकते हैं, राइट? अच्छा, अप टिल नाउ डू यू हैव एनी क्वेश्चन गाइस? इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज टाइप इट इन द चैट बॉक्स सो दैट आई कैन एड्रेस योर क्वेरी. हमने अब तक क्या क्या बात करी? जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है दोस्तों, आप ये सेशन को वापस आफ्टर द सेशन भी देख सकते हो, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि यहाँ पे आप लाइव में देखो और मुझसे क्वेश्चन पूछो. आपके जो व्यूज है वो मेरे साथ शेयर करो, आपके क्वेरीज मुझे पूछो तो मैं आपको उसका एड्रेस दूंगा. सीईटी भी लिया है आपने? नहीं, सीईटी नहीं लेंगे, वो सीईटी मैं उसको नहीं लेता हूँ, आपको पता है अंजुमन, ठीक है? उसके उसके बारे में बाद में बात करेंगे, क्योंकि वो एक बहुत ही नीश एग्जाम है, स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है, और उसमें भी काफी सारी चीजें होती है. आपने देखा ही था सीईटी में इस साल क्या हुआ था. सर आई एम डूइंग माय एमएससी नाउ, सो कैन आई डू एमबीए साथ में? आपको साथ में एमबीए करना है? हाँ मोहक, बट क्यों? तो फिर एमएससी क्यों कर रहे हो? सी मैं इसी चीज के साथ में तो मुझे प्रॉब्लम है, लोग डिग्री पे डिग्री लेते जा रहे हैं, ठीक है? अरे अंशुमन उसको छोड़ो ना, मैंने लिखा है मतलब इट्स वन ऑफ द एग्जाम, जरूरी नहीं हम उसके ऊपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? हाँ, इट्स देयर ऑन द नेक्स्ट स्लाइड, कैन यू सी दिस? या मयूर, IFT, टेस्टनेट, IBSAT एंड सो एंड सो फोर्थ. सर बैकअप है अगर अच्छा एमबीए कॉलेज का मिल तो एमएससी बैक है. अरे ऐसे नहीं होता है मोहक, ठीक है? सो बी वेरी श्योर व्हाट यू वांट टू डू. बैकअप के लिए कोई भी चीज मत करो. ग्रेजुएशन कर लिया ना, ग्रेजुएशन के बाद में पुट अ ब्रेक एंड देन डिसाइड कि आपको क्या करना है. वंस यू आर 100% कन्विंस, देन फाइंड द बेस्ट वेज. सर गैप लेने चाहिए क्या फॉर प्रिपरेशन? अरे मानसी, गैप लेने से कुछ नहीं होता है, कोई कोई दिक्कत नहीं होती है. ये हमारा परसेप्शन है कि अगर मेरा गैप है, सपोज कोई स्टूडेंट था इंजीनियरिंग के बाद में, उसने यूपीएससी के लिए ट्राई किया या किसी और के लिए ट्राई किया, वो उधर सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है? एंड नाउ आफ्टर 1.5 year और मे बी 2 years he or she wants to try MBA, that's perfectly fine. क्योंकि 2 साल आप बैठे नहीं थे, आपने कुछ किया था. आर गेटिंग दिस पॉइंट? बट उसकी जगह पे अगर आप ऐसे कहते हो कि सर मैंने 2019 में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, मैं कुछ करने ही वाली थी और सडनली कोविड हो गया, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैं बैठी रही ऐसे ही देखती रही, हर रोज शाम को बालकनी में बैठती थी और देखती थी कोविड कब जाएगा, तो ये मतलब उनको डाइजेस्ट नहीं होता है. ऐसी जब आप आंसर देते हो तो आपके एमबीए कॉलेज में सिलेक्शन होने के चांसेस कम हो जाते हैं. उनको गैप से प्रॉब्लम नहीं है, उनको वेस्टेज ऑफ टाइम से प्रॉब्लम है. अभी क्लियर? Okay, fine. Deepak, I'll address your query. Sir, my 10th and 12th marks are not good. What can I do to compensate that along with my prep? Any popular course or something? देखो दीपक, आप डेफिनेटली अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है, अगर आपका ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है और आपके पास दिन में ज्यादा समय है, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर सर्टेन एडिशनल कोर्सेज, नॉट फॉर टू गेन डिग्री बट टू गेन नॉलेज, ठीक है? जैसे आप कोई ग्राफिक डिजाइनिंग भी करना चाहो कर सकते हो, आप डिजिटल मार्केटिंग भी करना चाहो कर सकते हो, आपको कोई टेक्निकल एरिया में इंटरेस्ट है आप उसको कर सकते हो, राइट? आपको कोई अपनी हॉबीज परस्यू करनी है आप परस्यू करो, तो कोई दिक्कत नहीं है. बट हाँ, अगर आपका कॉलेज भी चल रहा है, फिर कैट की प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप इसके साथ में एक और कोर्स ले लोगे तो बहुत ज्यादा हौच पौच हो जाएगा. सो बेसिकली जो आपका 10th और 12th का पुअर परफॉर्मेंस है उसको कंपेंसेट आप कैट के अच्छे स्कोर के थ्रू कर सकते हो. आर गेटिंग माय पॉइंट? सो ट्राई टू स्कोर मोर इन कैट एग्जाम, जितना आप कर सकते हो. उसके लिए कोई प्रेशर मत रखो कि मुझे 99 ही लाना है, राइट? यू कैन ऑलवेज ट्राई टू स्कोर एज हाई एज पॉसिबल. फाइन गाइस, और कोई क्वेरी है आपकी विच यू थिंक आई शुड एड्रेस? सर मोस्टली पीपल सजेस्ट टू डू जॉब बिफोर एमबीए. देखो दोस्तों, ये भी एक पॉइंट है जो हम डिस्कस कर लेते हैं कि आफ्टर योर ग्रेजुएशन, जो मैंने रिसेंटली भी बताया था, जॉब करे या फिर डायरेक्ट एमबीए करे, ठीक है? पहली चीज मैं बता देता हूं कि इंडिया में एमबीए करने के लिए जॉब कंपलसरी नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है. काफी लोगों को ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि सर मुझे अनअकैडमी का 2 ईयर सब्सक्रिप्शन लेना है, तो कॉलेज का 3rd ईयर से ले, पर 3rd ईयर से क्यों प्रेरणा?
व्हाट आर यू डूइंग करंटली, वो मुझे पहले बताओ, बट मैं पहले इसके ऊपर आ जाता हूँ। तो देखो, अगर आप जॉब करते हो तो जॉब के साथ में डेफिनेटली आपका पर्सनालिटी इंप्रूवमेंट होता है, आपको बिजनेस के बारे में थोड़ा ज्यादा पता चलता है, ठीक है, और उसकी वजह से आपके थोड़े सिलेक्शन चांसेस बढ़ जाते हैं। बट एट द सेम टाइम आप जब एक बार जॉब में इन्वॉल्व होते हो तो ऐसा भी हो सकता है कि आप कभी एमबीए करने ही ना जाओ। सो दैट इज ऑलवेज पॉसिबिलिटी ऑफ दिस थिंग। मैंने आगे कुछ नंबर भी शेयर किए थे कि 80% of those who start working after the graduation, 80% of those who wanted to do their MBA but started working after graduation never do their MBA। क्यों? कुछ ना कुछ ऐसा आता रहता है और फिर बाद में वो कोई ना कोई ऐसे डिस्टेंस लर्निंग यहाँ वहां ऐसे एनरोल कर लेते हैं। 20% लोग MBA कंप्लीट कर पाते हैं, तो यू मे बी वन अमंग देम। उसकी जगह पे अगर आप डायरेक्ट MBA के लिए जाते हो, आप कंटिन्यूटी में अपना स्टडी कंप्लीट कर सकते हो, राइट। दूसरा, क्वांट वगैरह आप टच में हो, मैथ्स वगैरह के आप टच में हो, तो आप थोड़ा जल्दी ग्रास्प कर सकते हो, यू कैन इजीली क्लियर द एंट्रेंस एग्जाम। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो वो मेरे हिसाब से एक एडवांटेज है इसमें। एंड यस, यू मे बी आस्क दिस क्वेश्चन कि आपको क्या करना है, व्हाट इज योर विजन, व्हाट्स योर गोल एंड ऑल। तो आपको उसके लिए थोड़ा सा ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा कि मैं क्यों एमबीए करने जा रहा हूँ। इट ऑफ कोर्स इट कांट बी जस्ट टू गेट मोर सैलरी और जस्ट टू अंडरस्टैंड बिजनेस। ये तो मैंने सिर्फ आपको कुछ पॉइंट्स बताए, जस्ट आई गिव फूड फॉर थॉट, बट आपको उसके बाहर सोचना पड़ेगा कि क्या आप एक्चुअली अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, एंड हाउ दिस एमबीए प्रोग्राम वुड बी हेल्पफुल टू यू। Are you getting this point? So if you have proper answer to your decisions, definitely you can even be absorbed by any of the top B school। जैसे मैं हमेशा बताता हूँ guys, IIM अहमदाबाद ले लो, आप चाहो तो उसकी बैच का प्रोफाइल उन्होंने अपनी वेबसाइट पे रखा हुआ है। 70% डेफिनेटली एक्सपीरियंस पीपल है उधर, लेकिन 30% फ्रेशर भी तो है, they do not have any experience, so there are 30% freshers। Are you getting this point? So job is not compulsory। Are we clear about this everyone? Yes। चलो, तो अभी हम जल्दी से एग्जाम समझ लेते हैं, फिर उसका सिलेबस समझेंगे, फिर प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए वो समझेंगे, राइट। ओके, इन द मीन टाइम अगर आपको कोई और क्वेरी आती है आप चैट बॉक्स में डाल सकते हो, एड्रेस इट। सब लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लिया है ना सब लोगों ने? ठीक है, आई हैव शेयर्ड द लिंक विथ यू, तो मेक श्योर दैट ऑल ऑफ यू हैव जॉइन्ड द टेलीग्राम ग्रुप, राइट। ओके, सो दोस्तों यहां पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्स की अगर मैं बात करता हूं तो कैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम। व्हाई कैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम? एनी आइडिया? बहुत ही सिंपल सा रीजन है। कैट क्यों सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है? सब लोग कैट की ज्यादा बात करते हैं, व्हाई? हाँ, कम ऑन गाइस, शेयर समथिंग, कोई रीजन होगा। इज इट बिकॉज इट्स द टफेस्ट एग्जाम? हाँ, क्यों सब लोग इसकी ज्यादा बात करते हैं? कम ऑन गाइस, कुछ तो लिखो। ऑल कॉलेज एक्सेप्ट कैट। हाँ हाँ, ओके सर, आईआईएम सिर्फ कैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं। ओके, राइट। सो द मेन रीजन व्हाई कैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम इज द नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस एक्सेप्टिंग कैट स्कोर। गाइस 20 आईआईएम, आईआईएम्स कितने हैं? 20 आईआईएम से याद रखना ये, ठीक है। उसमें से जो सबसे 6 ओल्ड प्रेस्टिजियस आईआईएम है उसको हम ब्लैकी कहते हैं। BLACKY नहीं होता है, आई होता है। तो आपको पता होगा ब्लैकी टर्म आपने काफी जगह पे पढ़ा होगा, सुना होगा। बेंगलोर, लखनऊ, अहमदाबाद, कलकत्ता, कोझिकोड एंड इंदौर, ठीक है ना। ओके फाइन। तो गाइज 20 IIM कैट का स्कोर लेता है और उसके अलावा देयर आर अराउंड 30 मोर गुड बी स्कूल्स विच टेक कैट का स्कोर, जिसमें कुछ तो बहुत ही अच्छे कॉलेज है लाइक FMS, ठीक है, देन SP जैन, MDA गुड़गांव, IMT गाजियाबाद एंड सो एंड सो फोर्थ, राइट, XIMB भुवनेश्वर। तो ये सारे कैट का स्कोर लेते हैं। सो अराउंड 50 गुड बी स्कूल एक्सेप्ट कैट का स्कोर। कोई ऐसा और एग्जाम नहीं है जो इतने अच्छे अच्छे कॉलेज, इतने सारे अच्छे कॉलेज एक ही एग्जाम का स्कोर लेते हो, राइट। तो अगर कैट में मैं 99 लाऊंगा, डेफिनेटली मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन हो गए। 95 प्लस लाऊंगा तो भी बहुत ऑप्शन हो गए, 90 प्लस लाऊंगा तो भी अच्छे कॉलेज के ऑप्शन मिलेंगे, और 85 प्लस लाऊंगा तो भी मेरे पास कुछ अच्छे कॉलेज के ऑप्शन हो जाएंगे। आर गेटिंग दिस पॉइंट? ये जो 50 कॉलेज है
उसमें से टॉप जो कॉलेज है उसमें आपको 99 प्लस लगेगा, उसमें भी काफी सारी चीजें आ जाती है आजकल, वो सिर्फ कैट के बेसिस पे कॉल नहीं देते, आपका 10th 12th ग्रेजुएशन का परसेंटेज, फिर अगर आपने सीए किया है या फिर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, ये कुछ दूसरी चीजें भी देखी जाती है, तो ओवरऑल आपका प्रोफाइल लिखा जाता है। बट फिर भी मैं एक जनरल अगर जनरलाइज करना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि 99 प्लस परसेंटाइल आ गए तो डेफिनेटली बहुत ऑप्शन है, बट 85 प्लस भी आएंगे तो इनमें से कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो आपको कॉल देंगे, और वहां से एमबीए करने के बाद आपकी 8 से 9 लाख की सैलरी तो होगी ही होगी, राइट। तो इसलिए कैट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो गाइस कैट कब आता है? हर साल नवंबर लास्ट संडे को कैट होता है। कौन कंडक्ट करता है? आईआईएम्स कंडक्ट करते हैं। मोड क्या है? ऑनलाइन मोड में होता है। नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस मैंने बताया। शुड आई अपीयर? यस, वन मस्ट टारगेट कैट। There should not be any reason for you to not appear for CAT if you are planning to do MBA in India. ठीक है। फिर दूसरा एग्जाम आता है स्नैप। तो स्नैप पता है कौन कंडक्ट करता है दोस्तों? सिम्बायोसिस कंडक्ट करता है। सिम्बायोसिस ये स्नैप एग्जाम कंडक्ट करता है। कब आता है? नॉर्मली दिसंबर जैन पीरियड में आता है। कौन कंडक्ट करता है? सिम्बायोसिस। जैसा मैंने आपको बताया ऑनलाइन एग्जाम है। अब नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस एक्सेप्टिंग सिम्बायोसिस। तो गाइस सिम्बायोसिस इज एन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, ऑटोनोमस इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। उसमें 16 एमबीए के कॉलेज है जिसमें से 4 से 5 कॉलेज टॉप 50 में आते हैं। तो इसीलिए सिम्बायोसिस का स्नैप भी एक इंपॉर्टेंट एग्जाम है, वन शुड अपीयर फॉर दैट। सीईटी जैसे महाराष्ट्र में सीईटी होता है तो उससे आपको जमनालाल बजाज, सिडनेहम ऐसे कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। बट सीईटी चूंकि एक स्टेट लेवल एंट्रेंस एग्जाम है उसमें रिजर्वेशन वगैरह रहता है, जैसे कैट में भी, कैट के थ्रू आईएम्स में भी रिजर्वेशन रहता है बाय द वे। ओके, तो सीईटी में भी रिजर्वेशन है और सीट्स बहुत कम है, तो इसलिए हम इसको साइड में रख देते हैं। फिर सीमैट है, नरसिंह मुंजी का एनमैट है, एक्सएलआरआई करके कॉलेज है वो जैड कंडक्ट करता है। आईएफटी एक बहुत ही प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, जैसे अगर आपको फॉरेन ट्रेड में एमबीए करना है, आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट सीखना है या फिर आपको फॉरेन ट्रेड में आगे बढ़ना है तो यू कैन गो फॉर दिस काइंड ऑफ कॉलेज आईएफटी। टिसनेट है, आईबी सेट है, बहुत सारे एग्जाम्स है। तो आइडियली जब आप एमबीए का प्लान करते हो गाइस यू प्रिपेयर फॉर ऑल द एंट्रेंस एग्जाम बिकॉज सबका सिलेबस मोर और लेस सेम है, द पेपर पैटर्न वेरीज। तो आप 4 से 5 एग्जाम टारगेट कर सकते हो एंड देन यू कैन अप्लाई टू अराउंड 8 to 10 कॉलेजेस सो दैट फाइनली यू कैन कन्वर्ट वन ऑफ द कॉलेज। हर एक कॉलेज का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है? लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ कॉलेजेस। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस मोस्ट ऑफ द कॉलेज का 2 पार्ट में रहता है। पार्ट 1 प्रिलिमिनरी शॉर्ट लिस्टिंग बेस्ड ऑन कैट स्कोर एंड प्रोफाइल। ठीक है, डेफिनेटली उसमें कैट स्कोर का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रोफाइल का वेटेज कम रहता है। तो वो क्या करते हैं, एक 100 मार्क्स का एक स्कोर तैयार करते हैं कि कैट में अगर मेरे 90 कैट, सपोज ये 100 मार्क्स में से उन्होंने कैट को असाइन किए थे 60 मार्क्स और बाकी सारे अलग अलग कंपोनेंट को, जैसे एकेडमिक्स हो गया तो 10th के एकेडमिक्स को 5 मार्क्स, 12th के एकेडमिक को 5 मार्क्स, ऐसे अलग अलग कंपोनेंट को 40 मार्क्स दिए थे। अब कैट में आपके 99 परसेंटाइल है तो आपको 60 में से सपोज 50 यहाँ पे मिल गया। ठीक है, और फिर इसमें आपके 40 जो थे उसमें आपके 10 12 वगैरह कैसा है उसके बेसिस में इसमें आपको 30 मिल गया। और सपोज उन्होंने फिर फर्स्ट जो राउंड है उसमें शॉर्टलिस्टिंग के लिए कंपोजिट स्कोर का कट ऑफ 80 रखा था। तो अब अगर मेरा सपोज यहाँ पे प्रोफाइल मेरा थोड़ा वीक है तो मैं ये कैट में ज्यादा स्कोर कर सकता हूँ, मैं 99 की जगह पे 99.5 ला सकता हूँ ताकि मुझे ये 50 की जगह पे 54 मिल जाए। तो यहाँ पे भले ही मेरा 30 की जगह पे 26 है लेकिन मेरा टोटल 80 हो जाएगा एंड आई मे बी शॉर्टलिस्टेड बाय दैट कॉलेज। वंस यू आर शॉर्टलिस्टेड मतलब कॉल्ड फॉर जीडी एंड पीआई। अभी जीडी आजकल ज्यादातर कॉलेज में ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, उसकी जगह पे WAT होता है विच इज रिटन एबिलिटी टेस्ट, जिसमें आपको एक ऐसे लिखना होता है, राइट। तो वो सेकंड स्टेज हो गया आपका प्रिपरेशन मतलब सिलेक्शन प्रोसेस का। तो उसमें WAT एंड पर्सनल इंटरव्यू रहता है and then they once again evaluate you on all this and then they assign you a score। suppose इसके अंदर आपको 50 में से 40 मार्क्स मिले, 50 मार्क्स का उन्होंने इवैल्यूएशन रखा था, आपको 40 मिले। अब वो फाइनल स्कोर क्रिएट करेंगे। अब फाइनल स्कोर कैसे क्रिएट करेंगे पता है? तो उसमें कैट के स्कोर को फाइनल स्कोर 100 मार्क्स का क्रिएट करेंगे जिसमें कैट को उन्होंने वेटेज दे दिया से 60%। 60% इतना ज्यादा नहीं होगा, कम ही रहेगा। सपोज 40% वेटेज दे दिया
फिर उन्होंने इंटरव्यू परफॉर्मेंस को वेटेज दे दिया, आपका WAT एंड इंटरव्यू परफॉर्मेंस को उन्होंने 20% वेटेज दे दिया, ठीक है, या 30% वेटेज दे दिया, एंड जो आपका प्रोफाइल है उसको 10% वेटेज दे दिया, राइट। ये मैं एक जनरल आइडिया दे रहा हूं आपको गाइस, ये नंबर्स एक्चुअली वेरी करते हैं, और फिर उनमें से आपका जो स्कोर आता है उसके बेसिस पे वो डिसाइड करते हैं कि आपको ये एडमिशन देंगे कि नहीं देंगे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? एब्सोल्युटली। WAT PI मतलब वो भी क्लियर करना पड़ेगा, ऐसे तो आपको एडमिशन नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप जब ये पूरा क्लियर करते हो तब आपको एडमिशन मिलता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो वो प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी कम रहती है, एंड दैट्स व्हाई यू शुड कीप मोर ऑप्शंस ओपन so that you can get selected in one or other college, one or other good college. Are we clear about this? तो guys ZAT कब आता है? जैन में आता है, XLRI करके कॉलेज है वो कंडक्ट करता है, मोड ऑनलाइन रहता है। नंबर ऑफ गुड कॉलेजेस अगर आप देखोगे तो अराउंड 6 से 7 अच्छे कॉलेज ZAT का स्कोर लेते हैं, मतलब टॉप में। ओवरऑल अगर आप देखने गए तो शायद वो नंबर बढ़ के 10 से 12 हो जाएगा। एंड शुड यू अपीयर? यस, यू कैन थिंक ऑफ अपीयरिंग फॉर दैट। फिर और भी काफी सारे एग्जाम्स है जो मैंने आपको कहा था, IFT, टिस्नेट। टिस देखो मुंबई का एक बहुत ही अच्छा कॉलेज है, अगर आपको HR में करना है तो XLRI, टिस ये काफी अच्छे ऑप्शन है, तो आप उसके लिए जा सकते हो। तो अभी सवाल ये आता है कि सर ये सबका सिलेबस क्या है? सो लेट्स क्विकली लुक एट द सिलेबस। तो गाइस क्वांट की अगर बात करें तो डेफिनेटली आपने जो 10th स्टैंडर्ड तक किया है ज्यादातर उसके बेसिस पे ही आता है। वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ योर 11th 12th स्टैंडर्ड जो मैथ्स में आपका आता था, वेरी फ्यू कॉन्सेप्ट ऑफ दैट। तो बेसिक्स आता है आपका, फिर नंबर्स, एरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स, ये सारे कुछ मॉड्यूल्स है। तो आप देख सकते हो टॉपिक्स को। आई एम श्योर आप सबने ये टॉपिक्स पढ़े होंगे, पढ़े हैं दोस्तों? कैन जस्ट टाइप द टॉपिक्स, इसमें से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपने नहीं पढ़ा है? जस्ट टाइप इट इन द चैट बॉक्स प्लीज। ऐसा कोई टॉपिक जो आपने नहीं पढ़ा है? लुक एट द लिस्ट ऑफ टॉपिक्स। अगर आपने एक पूरा मॉड्यूल ही नहीं पढ़ा है, बहुत सारे टॉपिक एक मॉड्यूल से नहीं पढ़े, तो आप वो पूरा मॉड्यूल का नंबर ही लिख दो कि सर मैंने ऐसा तो कोई मॉड्यूल किया ही नहीं। क्लॉक एंड कैलेंडर नहीं किया है। स्नेहा इज सेइंग सर सर्ज एंड इंडाइसिस नहीं किया है। स्नेहा सर्ज एंड इंडाइसिस तो आपने पक्का किया होगा, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ये सब किया था ना, राइट? बैंकर्स डिस्काउंट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देखो ना ग्रे किया हुआ है। आज सुबह ही मैंने सर्ज एंड इंडाइसिस का एक सेशन लिया था, तो जिन लोगों ने अटेंड किया था मत आंसर करना, बट जिसने अटेंड नहीं किया था, जो आज फर्स्ट टाइम मेरा सेशन अटेंड कर रहे हैं, गाइस क्या मुझे बताओगे विच ऑफ दिस नंबर विल बी ग्रेटर, 4:5 या 5:4? सॉरी, 4:1/4 और 5:1/5? बताओगे कौन सा नंबर ग्रेटर होगा? इसमें से कौन सा नंबर बड़ा है? कौन सा साइन आएगा? ये आएगा, ये आएगा, कौन सा आएगा? So Mohoki saying first one is greater. अंशुमन इसमें कोई ऑप्शन नहीं चाहिए, तुमने सुबह का सेशन नहीं किया था क्या? तो लॉजिकली सोच के बताओ, ऑप्शन दो ही है तुम्हारे सामने, ये वाला एरो या ये वाला एरो, दैट्स इट, रखो। कम ऑन गाइस, बताओ कुछ, क्या आएगा? हाँ, राइट, करेक्ट गाइस, दिस नंबर इज ग्रेटर। ठीक है, अब कैसे करोगे ये? अब ये सारा स्कूल लेवल का है, ठीक है, ये सारा स्कूल लेवल का है। कैसे करेंगे इसको? तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो ना, 4:5 होल रेज टू 1/20 कर दो, तो कहने से 5 into 1/20 विल बी 1/4। सिमिलरली 5:4 होल रेज टू 1/20 कर दो, तो वन सेकेंड पावर तो यही 1/5 आ गई। अब दोनों की ऊपर की पावर 1/20 है, तो कौन सा नंबर बड़ा है? 4:5 चेक करोगे 1024 होगा, ये चेक करोगे 625 आएगा, तो डेफिनेटली दिस इज ग्रेटर। चलो एक और ऐसा क्वेश्चन पूछता हूं दोस्तों, थोड़ा सा सोच समझ के आंसर करना, ठीक है?
थोड़ा सा सोच समझ के बताना मुझे आंसर. ओके या गाइस, लेट्स टेक दिस नंबर. ठीक है, सपोज मैं आपको नंबर देता हूं समथिंग लाइक दिस वन, 59 raised to 1 by 5. ठीक है, and yeah, 59 raised to 1 by 5, and let me give you another number, 29 raised to 1 by 3. Which is greater out of this? 59 raised to 1 by 5 and 29 raised to 1 by 3. बताओगे अभी कौन सा आएगा? Now this is what I mean by basic maths. ये सारा स्कूल लेवल का है. आपने ये पावर 1 by 5 ये वगैरह आपने देखा है, पर भूल गए होगे वो अलग चीज है, राइट? Any idea, guys? No idea? Yes. देखो guys, this number will be definitely greater. क्यों? सुनो, तो अगर मैं 29 की जगह पे 27 लेता हूं, 1/3 मतलब क्यूब रूट, तो कहने से ये 3 हो जाएगा. So definitely this will be 3 point something. नहीं, मैं अपने क्वेश्चन खुद बनाता हूं प्रेरणा. सो मैं मेरे जो क्वेश्चन होंगे उसके जैसे क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे, लेकिन एग्जैक्टली वो क्वेश्चन रैली दिखेंगे आपको. ठीक है. सिमिलरली गाइज, अगर आप देखोगे तो 32 रेज टू 1 by 5 मतलब फिफ्थ रूट ऑफ 32. तो गाइज 2 रेज टू 5 32 होता है, तो फिफ्थ रूट ऑफ 32 कितना होगा? 2. तो कहने से दिस शुड बी 2 पॉइंट समथिंग. सो डेफिनेटली दिस नंबर विल बी ग्रेटर देन दिस वन. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? तो ये सारा जो है ना आपका बेसिक्स ऑफ मैथ्स में आता है. ये सारा बेसिक में ही कह सकते हो. अगर आपको ये पता है तो आप आगे का फिर जो कॉन्सेप्ट्स अलग अलग है वो सीखोगे. तो मैंने आपको क्वांट का सिलेबस दिखा दिया. अच्छा, बिफोर दैट गाइज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2022 एंड इफ यू वांट टू लर्न विथ मी, you can do it on Unacademy platform. You can take plus subscription using, you can use it my code SHAH10 और वो लेके आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. मेरे बैचेस नए शुरू हो रहे हैं और दूसरे एजुकेटर के भी शुरू हो रहे हैं, तो आप किसी से भी सीख सकते हो. अनलिमिटेड एक्सेस रहेगा. ओके, LRDI की बात करें तो गाइज LRDI में बहुत ही अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. इफ यू लुक एट कैट में बहुत ही अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं. ये वैरायटी कैट में नहीं आती है, ये दूसरे एग्जाम्स में आता है. जैसे स्नैप सीमैट में डायरेक्शन साइंस हो गया, क्यूब्स डाइसेस, वेन डायग्राम, कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. तो कैट का LRDI जो है वो बाकी के एग्जाम से थोड़ा सा अलग है. कैट के लिए बुक्स कौन से बताऊंगा. VARC की बात करें तो कैट में ये आते हैं, ओमैट्स में उसके अलावा ये टॉपिक्स भी आते हैं. ओमैट्स क्या होता है गाइस? अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट, तो उसको ओमैट कहते हैं, अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट. मतलब स्नैप आ गया उसमें, एनमैट आ गया, सीमैट आ गया, एंड सो एंड सो फोर्थ. राइट? Okay, fine. So guys, these are the books that you can follow. You can use any of these books or you can use any of the institute's material which is available at the second hand. पूरा फ्रेश परचेज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर कोई क्वेश्चन चेंज नहीं होते. अब उतने क्वेश्चन करोगे, 2017 का भी कोई मटेरियल आपको मिल जाता है, आप उतने करोगे, कैट आपका क्लियर हो जाएगा. क्योंकि कैट का सिलेबस चेंज नहीं होता है NCERT की तरह, राइट? तो आप कैसे भी इसको रेफर कर सकते हो, राइट? सो दोस्तों, मैंने आपको काफी सारी चीजें आज के सेशन में बताई. वंस अगेन दिस ऑफर इज गोइंग ऑन, अर्ली बर्ड ऑफर. तो आप अभी अगर 30 नवंबर के पहले करते हो तो यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट. जब मेरा कोड अप्लाई करोगे SHAH10 तो 10% मिलेगा, और ये ऑफर है इसलिए आपको एडिशनल 10% मिल रहा है. सो गो फॉर दैट. मैंने प्राइसिंग प्लान दिखाए थे, तो आप उसके लिए जा सकते हो. एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी राइट नाउ, तो आप मुझे अभी पिंग कर सकते हो. These are the URL from where you can access my many other free videos. आपको एप्टीट्यूड के लिए प्रिपेयर करना है, बैंक पीओ के लिए करना है, मेरे सारे सेशन आपको हेल्पफुल रहेंगे. These are all free sessions. तो इसमें 300 से ज्यादा कुछ फ्री सेशंस है. प्लीज डू वॉच द सेशंस. नाउ आस्क मी योर क्वेरी. आई एम कीपिंग इट ओपन फॉर डाउट्स एंड देन विल जस्ट एंड द सेशन, बिकॉज 4 बजे से बेसिक्स ऑफ मैथ्स का क्लास है, तो आप लोग भी उधर ज्वाइन कर सकते हो बेसिक्स ऑफ मैथ्स के लिए. चलो, कम ऑन गाइस.
Tell me quickly if you have any query. No queries, guys? क्या किसी को कुछ पूछना है? So, sir, can you suggest any certification course? अंजिता, मैंने पहले ही कहा कि सर्टिफिकेशन में आपको क्या स्किल सीखनी है आप उसके लिए जा सकते हो, ठीक है? जैसे आपको लैंग्वेजेस में बहुत इंटरेस्ट है तो आप फॉरेन लैंग्वेज के लिए भी जा सकते हो, ठीक है? आपको सपोज सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो आप सॉफ्टवेयर के कोई नए लैंग्वेज सीख सकते हो। आर गेटिंग दिस पॉइंट? तो दिन का जो कुछ अमाउंट है वो आप नई स्किल सीखने पे स्पेंड करो। सर, हाउ टू डेवलप प्रोफाइल? सेम थिंग, अटेंड, जस्ट कीप एनरिचिंग योर नॉलेज बेस, ओके? तो गाइस, ये प्रोफाइल के ऊपर मैं नेक्स्ट वीक में एक सेशन रख रहा हूं, प्लीज अटेंड दैट सेशन, इट विल बी ऑन यूट्यूब, तो प्लीज वो अटेंड करना, ठीक है दोस्तों? फाइन, एंड इफ यू हैव एनी अदर क्वेरी then you put it over here, right, on this group. मैंने लिंक शेयर किया है, so make sure all of you have joined this group, ठीक है दोस्तों? तो मिलते हैं 4 बजे, बाय बाय, ठीक है? And please share this link with all your friends and don't forget to press the like button, guys. Thank you.